Okay students, now we'll start chapter 15, waves. So first of all, we'll see the definition of wave motion. See, wave motion is actually a motion in which energy is transferred from one region to another without the actual movement of the molecules of medium from one region to another. So only the energy is transferred, or else you can say only disturbance is transferred and not the particles of the medium. You must have studied this in standard 9 in chapter sound. Okay, there you have studied the concept of wave. So there you must have studied that a wave is actually propagation of disturbance, or else you can say propagation of energy without the actual movement of molecules of medium. Next we'll see mechanical or elastic wave. So mechanical waves are those waves which require medium for their propagation. Such waves are also known as elastic wave. An example of mechanical waves are, you can say water waves. For example, if you throw a stone in a stagnant water, then you can see round ripples formed. Those waves are mechanical waves. अगर पानी ही नहीं होता और आप पत्थर फेंकते तो आपको वैसे waves नहीं दिखते. Another example of mechanical wave is sound waves. We know that sound waves require medium for propagation. If you go on moon and talk, then you won't be able to listen to each other without any hearing aid, because there is no atmosphere on the moon, means there is no medium on the moon, and hence sound waves cannot travel there. Next is the wave produced on the string. हम string के ऊपर जो wave produce करते हैं, अगर string ही नहीं होगी तो वो wave produce नहीं हो सकते हैं. So all these waves require medium for their propagation, and therefore they are known as mechanical waves. Another types of waves are non-mechanical waves. So they are opposite to mechanical waves. Non-mechanical waves will not require medium for their propagation. Means it is not necessary for the medium to be present. And the example of non-mechanical wave is actually light waves, जिनको हम electromagnetic waves भी बोलते हैं. हम जो लाइट को देखते हैं, दैट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है उसमें अलग अलग वेव्स होते हैं, या तो हम उन्हें रेडिएशंस बुला सकते हैं, जिसका एग्जांपल है एक्स रेज, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज है, फिर विजिबल लाइट है. ये सारे ही वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और इन सबका जो ग्रुप है इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. सो ऑल दीज वेव्स डज नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन. That doesn't mean that if the medium is present then these waves cannot propagate. मीडियम होगा तो भी ये वेव आगे बढ़ सकते हैं, मीडियम नहीं होगा तो भी ये वेव आगे बढ़ सकते हैं. सो इसका एग्जाम्पल क्या है? All these radiations are emitted from sun. Between sun and earth there is vacuum also and there is atmosphere also. So sun की जो light है या sun में से जो UV radiations आते हैं, ये सारे vacuum में से भी travel करते हैं और फिर हम तक भी पहुंचते हैं. मतलब वो एटमॉस्फेयर यानी कि मीडियम में से भी ट्रैवल कर सकते हैं. सो इसीलिए नॉन मैकेनिकल वेव का दूसरा नाम ही क्या दे दिया गया है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. बिकॉज इनको आगे प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की नेसेसिटी नहीं है. मीडियम होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा. नेक्स्ट आर मैटर वेव्स. सी दीज वेव्स आर एसोसिएटेड विथ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर, दैट इज electrons, protons, neutrons, atoms and molecules. इन सभी वेव को, इन सब से जो रिलेटेड वेव्स हैं उन्हें हम बोलते हैं मैटर वेव्स. एंड इसका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम यूज करते हैं वेव्स विच आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन. ये चीजें आप 12th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, वहां पर आप मैटर वेव्स पढ़ोगे. इन दैट चैप्टर दे आर प्रूविंग दैट सपोज इफ अ वेव कैन बिहेव एज अ पार्टिकल, देन अ पार्टिकल ऑल्सो कैन बिहेव एज अ वेव. सो वहां पर इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड वेव आप पढ़ोगे. सिमिलरली न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इन सबके साथ एसोसिएटेड वेव होते हैं जिन्हें हम बुलाते हैं मैटर वेव्स. बड़े बड़े पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड वेव नहीं होते हैं, बिकॉज उनकी वेवलेंथ ऐसी नहीं होती है कि हम आइडेंटिफाई कर सके. जबकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं,
तो इनकी साइज बहुत छोटी है, तो इनके साथ एसोसिएटेड जो वेव है उसकी वेवलेंथ ऐसी होती है कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर सपोज मैं ऐसा सोचूं कि ये पार्टिकल है पेन, इसके साथ एसोसिएटेड भी वेव होगा तो होगा, पर इसकी जो वेवलेंथ होगी वो ऐसी होगी कि हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे कि ये एक वेव है। इसलिए मैटर वेव्स आर ऑलवेज एसोसिएटेड विथ फंडामेंटल पार्टिकल्स विच आर वेरी स्मॉल इन साइज। नेक्स्ट